the heading series and parallel combinations of resistances. Series and parallel combinations of resistances. क्विक रिकैप आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी जो भूल गए उनके लिए बता दे रहा हूं. सपोज आई हैव कनेक्शंस इन सीरीज. पहले ये पहचानना कैसे है हम लोग, हाउ विल वी रिकॉग्नाइज कि सीरीज है या पैरेलल है? हाउ विल वी रिकॉग्नाइज कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? बताओ कैसे से रिकॉग्नाइज करेंगे कि चीज सीरीज में है कि पैरेलल में? बोलो. देखो आप ना करंट को फॉलो करो, करंट चलेगा यहां से कुछ ऐसा, राइट? समझ आ रहा है? अगर करंट के पास मूवमेंट का सिर्फ एक पाथ हो, ध्यान देना, इफ द करंट हैज गॉट ओनली वन पाथ फॉर इट्स मूवमेंट, देन दोज कनेक्शंस आर इन सीरीज. The current should not have more than one path. If the current has got only one path for its movement, then that is a series connection. जैसे आप यहां पर देखिए, if I start from here, the current has no other path, है ना? The current has no choice. It has to move along this path only. It means that these three are in series. ठीक है क्या? Right? अरे हाँ. Yes, sir. And in series connection, the current through the resistances will be same. तो लिखो बड़ा यहाँ पॉइंट लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो. जस्ट मेक दिस डायग्राम. आपको ऑलरेडी आता है, 10th में पढ़ा होगा आपने अच्छे से, फिर भी देखो. इन सीरीज कनेक्शन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम. द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम. However, there is a drop of potential across each resistance. However, there is a drop of resistance, drop of potential across each resistance. The total potential drop is the sum of potential drops of individual resistances. The total potential drop is the sum of potential drops across individual resistances. जो total potential drop होगा ना यहां से लेकर के यहां तक का, ये क्या होगा? तीनों का सम होगा, V1 plus V2 plus V3. ठीक है? So we can start writing V is equal to V1 plus V2 plus V3. We know that V1 is equal to I into R1, यानी कि I कैपिटल ले लिया, और V2 is equal to I into R2 और V3 is equal to I into R3. Now let the equivalent resistance be RS. So I can write I into RS, है ना, is equal to I R1 plus I R2 plus I R3. Take out I common, कट जाएगा, तो you'll have I RS is equal to R1 plus R2 plus R3. अगर if we have n resistances in series, आपका हो जाएगा RS is equal to R1 plus R2 plus as simple as that. पहचानना कैसे है? आप करंट के पाथ को फॉलो करो. अगर करंट के पास आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, if the current doesn't have any other option, just one path to tread, then those many resistances falling in that path are all in series. ठीक है? This is the best way to recognize the connection as a series connection or a parallel connection. Just follow the path of the current. कॉपी कर लिया?
एक पॉइंट दे दो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन the equivalent resistance is larger than the largest individual resistance. The equivalent resistance is larger than the largest equivalent resistance, largest individual resistance. ठीक, अब आते हैं पैरेलल पे. If you see here, if I start with the current, then the current has got three options from here. दिख रहा है क्या? करंट के पास चलने का तीन रास्ता है, I1, I2 and I3, राइट? है ना? यहां पर करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है तीन 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 भाग में. ठीक है क्या? ठीक है ना? Just write it. If a number of resistances are connected between two common points, if a number of resistances are connected between two common points, so that each of them, provides a separate path for current, so that each of them provides a separate path for the current. है ना? यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है. दिख रहा है क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये दोनों पॉइंट्स के बीच में दिख रहा है आपको, V का ही ड्रॉप है. ये खास बात है कि यहां से लेकर के देखो, क्योंकि इसके आगे और कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं. समझ में आ रहा है? इसके आगे तो कुछ और है ही नहीं ना. तो यहां पे और यहां पे इन दोनों के बीच में पूरा ड्रॉप कितने का है? V का ही है. तो इसमें खासियत क्या है कि हर एक रेजिस्टेंस को V मिल रहा है. हर एक रेजिस्टेंस को क्या मिल रहा है? V का ड्रॉप मिल रहा है. हाँ, समझ में आ रहा है बाबू? यहां पर क्या होता है, लिखो, इन अ पैरेलल कनेक्शन the current gets divided. So we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. ध्यान क्या रखना है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज वॉज डिवाइडेड, करंट वॉज सेम. इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिवाइडेड. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. So we can write I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. है ना? Now let equivalent resistance is equal to Rp. So we can write V upon Rp is equal to V upon R1, V upon R2, V upon R3. टेक आउट V कॉमन, तो बन जाएगा 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by. देखिए समझ में आ रहा है क्या? बताइए. कुछ नहीं है इसमें, आपको ऑलरेडी आता है जिसको. तो इफ यू हैव गॉट n रेजिस्टेंसेस, वो n तो एक्सटेंड हो जाएगा.
क्या करना, देखो मैंने क्या सिखाया था आपको, आपको पहचानना है करंट का पाथ। देखो यहां बैटरी है, यहां से करंट स्टार्ट हुआ, यहां पे गया। अब देखो ध्यान से पॉइंट ए पर देखो, तो करंट के पास दो रास्ता है जाने का, एक ऐसा और एक ऐसा, राइट। उसके बाद इससे आगे बढ़ो, करंट के पास सिर्फ एक रास्ता है, मतलब ये वाला और ये वाला सीरीज में है, और ये वाला आर्म और ये आर्म, मतलब ए सी बी एंड ए बी आर इन पैरेलल। तो इस दोनों आर्म का अगर मिलाओगे आप, कितना हो जाएगा 60, मतलब आपका जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। So you'll have 1 by 60 plus 1 by 30 is equal to 1 by r. So r is equal to how much? 60 into 30 upon 60 plus 30. कितना आ जाएगा? और 2 वोल्ट दिया है ना, इस 20 ohm. Therefore I is equal to 2 volt by 20 ohm, that is 0.1 ampere. And you will be surprised to know ये क्वेश्चन पहले आईआईटी में आ चुका है, इतना सिंपल क्वेश्चन। एक और सवाल ट्राई करो। एक और सवाल ट्राई करो, इजी क्वेश्चन। ट्राई करो। पैरेलल में है, तो क्या मेरा सर्किट कुछ ऐसा बन सकता है? एटीन ओम, 15 ओम, 10, है ना। सो इस आर्म का कितना हो जाएगा, देखो 18 प्लस 15 इंटू 10 बाय 15 प्लस 10, so you have 18 plus 150 by 25, you have 18 plus 6, so you have got 24 ohm as the equivalent resistance. Therefore current is equal to 45 by 24, कितना आ जाएगा? 45 नहीं 60 दिया हुआ, मुझे क्या हो गया आज, 60 by 24 is 2.5 एम्पियर। सो करंट इज 2.5 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, क्या बोला क्वेश्चन होता है, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो 2.5 इंटू 18 में निकालने के लिए बोला, 18, 45। प्लीज देखो समझ में होगा, इजी क्वेश्चन था यार, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्यों नहीं हुआ आपसे? एक और ट्राई करते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, अ सेट ऑफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस r ohm when connected in series has an effective resistance x. So can I write x is equal to r plus r plus r plus and so on, that is n into r, है ना, x is equal to n into r, right? Now they are giving you effective resistance of y ohm if connected in parallel. So 1 by y is equal to 1 by r plus 1 by r plus 1. You have 1 by y is equal to n by r. समझ में आ रहा है क्या? Which implies that y is equal to r by n.
आंसर क्या होगा? x एंड y इज इक्वल टू एन आर इंटू आर बाई एन। क्या हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू इजी था बहुत। किसी का आंसर नहीं आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार। कॉपर रॉड का लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, है ना। और एरिया भी आपको दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। वी नो दैट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो कॉपर का रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है? 1.7। एल कितना दिया हुआ है? 20 cm, मतलब 0.2। और यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है? 2 mm, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस। सिंप्लीफाइड आपको बहुत सिंपल सा मिल जाएगा, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, आरसी बोल दो उसको ना। आर एल्यूमिनियम सेम टाइप से निकालो, 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू लेंथ कितना दिया है इसका कॉपर का? सेम ही है ना बिल्कुल, दोनों जब आइडेंटिकल दिया हुआ है। ठीक है क्या? इसको जब सॉल्व करोगे आपको कितना आ जाएगा? 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ध्यान से देखो, दोनों कनेक्शन किस टाइप से है, सीरीज में कि पैरेलल में? बताओ, दोनों कनेक्शन जो किया हुआ है Parallel. कॉपर और एल्यूमिनियम का, कैसा है? पैरेलल है कि सीरीज है? बोलो। Parallel. इट इज अ पैरेलल कनेक्शन। अप्लाई द फंडा। हो जाएगा अब? सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई कर लो इसको। छोड़ दूं यहाँ पर, आप लोग कर लोगे इसके आगे ना? हेलो एवरीवन, इसका ये कर लोगे ना? ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्राई करके आओ जल्दी से। एक और सवाल ट्राई कीजिए। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ एल, है ना, 16 ohm resistance. It is cut into 4 equal parts. Each part is stretched uniformly to length L, and all the 4 parts are connected in parallel. ये आपका दिया है इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास एक वायर है, मान लो ऐसे करके, उसका लेंथ कितना है? L। आप उसको 4 पार्ट में काट लो, है ना, इंटू 4 पार्ट्स। तो हर एक का लेंथ कितना हो गया? L/4, L/4, L/4 और L/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसी वायर को मैंने क्या किया? स्ट्रेच कर दिया किसमें? L लेंथ का। तो यही वायर जो है, अगर मैंने इसको उठाया और बना दिया L लेंथ का, तो ऑब्वियसली इसका एरिया कम हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा वायर। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ऐसे केस में क्या होगा? इस वायर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो सब्सिक्वेंटली उसका अफेक्टेड क्या हो जाएगा? सब्सिक्वेंटली उसका रेजिस्टेंस अफेक्टेड हो जाएगा। सो वी कैन राइट वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी कांस्टेंट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू A dash L dash इज इक्वल टू A dash L dash इज इक्वल टू AL। आप देखो ध्यान से, A dash by A is equal to L by L dash, implies that A dash by A is equal to L by 4 divided by L। बात समझ में आ रहा है क्या? हेलो एवरीवन, क्लियर हो रहा है? दैट इज 1/4।
मतलब क्या, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 4, मतलब जो नया एरिया बनेगा वो क्या होगा, पुराने एरिया का 1/4 हो जाएगा। ठीक है क्या? सो आर अपॉन आर डैश क्या बन जाएगा, एल बाई ए डिवाइड बाय एल डैश बाई ए डैश, है ना? समझ में आ रहा है ये वाला बात? रो तो दोनों का कांस्टेंट ही रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। दोनों ही केस में रो तो कांस्टेंट रहेगा, तो रो को मैंने पहले हटा दिया। सो मेन जो फैक्टर डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, एल और ए डिसाइड करेगा। सो एल बाई ए इंटू ए डैश बाई एल डैश, यू विल हैव एल बाई एल डैश इंटू ए डैश बाई ए। सही लग रहा है? सही लग रहा है ना? सो एल बाई एल डैश कितना हो गया, एल बाई एल डैश कितना हो गया, पहले लेंथ कितना था एल बाई 4, अभी कितना है पूरा पूरा एल, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू एरिया में देखो ध्यान से, जो नया वाला एरिया है वो कितना है 1/4 हो गया है, तो 1/4 इज 1/16। यहाँ तक क्या आप सबको बात समझ में आया क्या एवरीबॉडी? यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो यार। ये पार्ट क्या आप सबको समझ में आया बताओ प्लीज, आराम से देखिए इसको, कोई समस्या नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी। So each resistance is now of 16 R. बस apply them in parallel, तो बोलने का जरूरत नहीं है। So 1 by R is equal to 1/16 plus 1/16 plus इसको R भी कर दीजिए। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका R है, मतलब एवरी रेजिस्टेंस जो हुआ L/4 लेंथ वाला, उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, ये R बाई, मतलब ये कितना हो जाएगा 16 दिया है, 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? एक 16 ओम के रेजिस्टेंस को वी हैव कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम, यहाँ पे R कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। गाइस बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे R कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना? कोई बोलता ही नहीं यार। RP इज इक्वल टू 16। प्लीज देख लीजिए इसको, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ठीक ठाक क्वेश्चन था, यू शुड हैव डन दिस। आई थिंक सबका हो गया होगा। एक और सवाल ट्राई करते हैं, जिनका हो गया वो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन सेज फाइंड द करंट इनटू द एमीटर। क्वेश्चन सेज फाइंड द करंट थ्रू द एमीटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करने बोल रहे, करंट मांगा ना, पहले आप एक काम करिए, जस्ट मॉडिफाई दिस कंडीशन। आप देखो करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ तक कोई रोक टोक नहीं है, जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही इसको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं ये वाला और ये वाला आर दोनों किस में है, दोनों किस में है, पैरेलल में है क्या? ये 10 और ये 10 दोनों क्या है, पैरेलल में है ना? ठीक है ना? और दोनों ही आर्म इस वाले 5 से और ये इस वाले 5 से पैरेलल में है। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला जो आकर के 10 ओम है ना, वो यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, लेकिन ये 5 ओम पूरा यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा कहानी बनेगा, ये समझ लो आप पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब देखिए पॉइंट बी से फिर दो ब्रांचिंग हो गया है,
कुछ ऐसा ही है ना। और 5 ओम जो है ये पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में लगा हुआ है। तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनाएगा तब का काम हो जाएगा। दिस शुड बी योर फाइनल डायग्राम। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर आप निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा? ये 5 है, नीचे वाला भी 5 है, और बीच में कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 10 और ये 10 कितना हो जाएगा? 100/20, तो ये 5 आ जाएगा, और राइट वाला ये 5 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट सारा का सारा 5 हो गया। राइट, समझ आ रहा है क्या? Therefore, net resistance will be what? 1/Rp is equal to 1/5 plus 1/10 plus 1/5. You have 10, 1 plus 1 plus 2. So, आपका Rp हो जाएगा 2 ohm. Rp is 2 ohm. Clear है ना? Rp is 2 ohm. So, your current will be what? 10 volt by 2 ohm is 5 ampere. Answer is 5 ampere. इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्रॉपर्ली उसको सिंप्लीफाई करना है सर्किट को। इफ यू हैव सिंप्लीफाइड सर्किट वेल, आपका काम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो गया है हम अगला क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। The question says, find potential difference across the capacitor. Find potential difference across the capacitor. देखो, जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेटअप, विद इन अ फ्यू मोमेंट्स, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स में ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। When the capacitor is fully charged, it will not allow current to pass in this arm. It is called as the steady state. ये पार्ट समझ में आ रहा है? स्टेडी स्टेट आपका जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ यूं बन जाएगा। अब इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या मांगा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द कैपेसिटर। है ना, आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सी और एफ, इसका आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा बात। अब निकाल लेंगे हम लोग, इजी लग रहा है बहुत। तो ये आपका सिंप्लीफाई कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? यहाँ पर 6 ओम और यहाँ पर 3 ओम और यहाँ पर 3 ओम, ये आपका पॉइंट एफ है, और यहाँ पर अपना 15 है आपका। समझ आ रहा है क्या? तो करंट कितना जा रहा है सर्किट के अंदर? कितना करंट जाएगा बताओ? द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी व्हाट? 6 × 3 अपॉन 6 + 3 + 3। ये पार्ट समझ में आ रहा है? ये दोनों पैरेलल और ये वाला सीरीज। आंसर विल बी व्हाट? आई थिंक इट विल कम आउट विद 5। 5 आएगा क्या? 5 ओम आएगा। Therefore, current is equal to
15/5 दैट इज 3 एम्पियर। तो सर्किट से हम लोग 15 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट एवरीवन, अंडरस्टूड? यार ये बात बताओ, समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहां तक देखिए, सबको समझ में आ रहा है? कुछ पूछना तो पूछिए। The question hasn't finished yet. You have been asked to find the potential difference between C and F. तो आपको देखना पड़ेगा C पर कितना पोटेंशियल है और F पर कितना पोटेंशियल है ना? आपको देखना पड़ेगा कि C पर कितना पोटेंशियल है और F पर कितना पोटेंशियल है। Let us read out the diagram. ये पॉइंट F है और ये आपका पॉइंट C है, ठीक है ना? कुछ ऐसा ही कहानी है क्या? वो आपका पॉइंट F है और ये आपका पॉइंट C है। तो I1 और I2 करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। ये आपका हो गया I1, ये हो गया I2। We know it very well that the current gets distributed in the ratio opposite of the resistances in the arms. So in this arm we have got 6 ohm, in this arm we have got 3 ohm, right? So I1 कितना हो जाएगा? बोलो I1 कितना हो जाएगा? तो बताएगा I1 कितना होगा? तो बता पाएगा I1 कितना होगा? बताओ। होगा ना? इन द रेशियो ऑपोजिट, तो क्या करेंगे? टोटल रेशियो कितना होगा? 3 3 3 9 है ना? 9 है इसमें पूरा मिला करके, और इसको कितना मिलना चाहिए? उसका 3, और उसको मिलना चाहिए उसका 6। समझ में आ रहा है क्या? इस आर्म में रेजिस्टेंस है 6, इस आर्म में है 1 सेकेंड, है ना? ठीक है ना? आप देखिए ध्यान से, चल नहीं रहा, क्या हो गया? देखिए ध्यान से, इस आर्म में आपका रेजिस्टेंस है 6, इस आर्म में है 3। तो जो करंट होगा ना, ऑब्वियसली इसमें जाएगा ज़्यादा करंट, इसमें जाएगा कम करंट। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो। तो इसमें कितना जाएगा? 3/9 का रेशियो में जाएगा, और इसमें जाएगा 6/9 का रेशियो में। उल्टा होता है, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर ज़्यादा करंट जाएगा। ठीक है क्या? ये पार्ट समझ में आ गया एवरीवन? ये हो गया 1 एम्पियर। इससे कितना करंट जा रहा है? इससे कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यस, पोटेंशियल एट सी कितना हो जाएगा? बताओ, पोटेंशियल एट सी कितना हो जाएगा? गाइस बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? गाइस ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या ऊपर से आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है। समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। प्लीज़ बोलिए, समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन देख के लग रहा है यार। बोलो यार, समझ में आ रहा है? तस्नीम, ईशान, समझ में आ रहा है क्या? अनुश्री, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. पूरा पार्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब एक No, sir. तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर कितना करंट जा रहा है वो मिल गया, इसमें कितना करंट जा रहा है वो मिल गया। हमें निकालना क्या है? पॉइंट सी और पॉइंट एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखो, तो काट दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एफ। समझ में आ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 3 × 1 है ना, यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा। 3 × 1 प्लस 3। समझ आ रहा है क्या? एवरीवन क्लियर हो रहा है? प्लीज चेक कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए। क्या देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट ए से स्टार्ट करिए। यहाँ पर देखिए, एक इधर गया है और एक इधर गया है। क्या बोल सकते हैं ए और डी दोनों को शॉर्ट किया गया है? बोल सकते हैं क्या? पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों को शॉर्ट किया गया है। शॉर्ट करने का मतलब क्या है? उनके बीच आप एक वायर लगा दो बिना किसी रेजिस्टेंस के। इफ यू पुट अ वायर बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट पुटिंग एनी रेजिस्टेंस, देन दोज पॉइंट्स आर शॉर्टेड। मतलब पॉइंट सी और पॉइंट ये वाला पॉइंट, इसको भी क्या किया गया है? शॉर्ट किया गया है। क्लियर है क्या बात? अगर हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करें, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। ये आपका डी हो गया। डी पर देखो तो आप 2 एम्पियर लगा हुआ है, 2R लगा हुआ है, 2R। अब यहाँ पर देखिए 2R जो है ये सी पर खत्म हो रहा है, और सी पर भी क्या किया हुआ है? शॉर्ट किया हुआ है। पॉइंट सी क्या किया हुआ है? शॉर्ट किया हुआ है। किसके साथ? पॉइंट बी के साथ। ये पार्ट पल्ले पड़ रहा है एवरीवन? ये पार्ट पल्ले पड़ रहा है ना? बताओ प्लीज। यानी कि आप देखिए, ये जो 2R है, दिस 2R इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, एंड दिस 2R इज बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। लेकिन पॉइंट ए और डी क्या है? सेम पॉइंट है। दोनों को क्या किया गया? शॉर्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे एक ऐसे करके एक चढ़ा दीजिए। ठीक लग रहा है क्या? बोलो हाँ। समझ आ रहा है? अरे शॉर्ट किया है मतलब क्या है? दोनों सेम पोटेंशियल पे है। बोथ विल बिहेव लाइक द सेम पॉइंट्स। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो आर है कहाँ लगा हुआ है? पॉइंट डी और पॉइंट बी के बगल में, के बीच में। अच्छा, पॉइंट डी कहाँ पर है? यहाँ पर। पॉइंट बी कहाँ है? सी का भाई तो है पॉइंट बी। ये हो गया आर। ये बन गया आपका डायग्राम। सिंपली सॉल्व कर लोगे, इसी सॉल्व कर लोगे आप लोग। क्या ये टॉपिक समझ में आया आपको? कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया सर्किट को? देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट है बहुत सिंपल सा। क्या आपको समझ में आया? बताइए प्लीज। आंसर होगा R/2। एक और सवाल ट्राई करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। द क्वेश्चन अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ट्राई कीजिए। देखो, आप अगर ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 2 भाग में बट रहा है, तो ये और ये ऑब्वियसली किस में होगा? पैरेलल में होगा, है ना?
ये पॉइंट से ये वाला और ये वाला आर्म किसमें होगा, पैरेलल में होगा। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बोल रहा हूँ ना। और देखो जी पॉइंट से दोनों आकर के डी में मिल रहा है, ठीक है क्या, ठीक है ना। ये पार्ट आप सबको समझ में आया क्या, ये पार्ट क्या आप सबको समझ में आया, बताओ प्लीज। हाँ जी बोलिए। और देखो पॉइंट जी और ये पॉइंट ए और ये एफ तीनों क्या सेम पॉइंट है क्या, ठीक है, तीनों क्या शॉर्टेड किया हुआ है, सही बोल रहा हूँ क्या, तीनों पॉइंट का शॉर्ट किया हुआ है, बोलिए ना यार, तीनों पॉइंट शॉर्ट किया हुआ है ना, नहीं बोलोगे। Yes, sir. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, अब देखिए पॉइंट जी से सी के तरफ एक आर रेजिस्टेंस गया हुआ है, ठीक, आपको ये बात समझ में आ रही है एवरीवन, बताइए प्लीज, प्लीज टेल मी, ये पॉइंट क्या आप सबको क्लियर Yes, है। sir. मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी करवाया है, सोमाली आर यू कंफर्टेबल। Yes, sir. पॉइंट जी से एक रेजिस्टेंस गया है सी के तरफ, ठीक, ठीक बोल रहा हूं। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, यही इस क्वेश्चन का मेन कैच है। पॉइंट जी से सी के तरफ और पॉइंट जी से डी के तरफ क्या दोनों में आर लगाएगा रेजिस्टेंस, जी से सी भी आर लगाए और जी से डी भी क्या लगाए, आर लगाए, है ना। तो इस आर्म में और इस आर्म में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, समझ रहे हो। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ इससे हो रहा है, इस वाले आर से प्रॉब्लम है और यहाँ पे नीचे में इस वाले आर से प्रॉब्लम है। अगर इसका मामला मैं सुलझा दूं तो क्वेश्चन में से तुरंत हो जाएगा, फिर तो मुझे दिख रहा है इसका आंसर। क्या ये बात आप सभी एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज बोलिए। बोलो ना, यहां से यहां सेम रेजिस्टेंस और यहां से यहां भी सेम रेजिस्टेंस, तो क्या इस आर्म और इस आर्म में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है ना, तो दोनों में क्या पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। क्या मैं कह सकता हूं पॉइंट सी, ये बहुत मेन पार्ट है इसका, ये जेई का क्वेश्चन एक्चुअली है, पॉइंट सी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, पॉइंट सी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, ये बात अगर आपके पल्ले पड़ गया आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, नहीं। सिमिलरली पॉइंट डी एंड ई आर एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सिंपली तो मतलब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म नेग्लिजिबल हो गया, हम लोग को उसको काउंट करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहां पे करंट जा ही नहीं रहा है। बिकॉज अगर ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाए क्या बोलेंगे, देन नो करंट विल फ्लो इनटू आर्म, आर्म सीडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सिमिलरली आर्म डीएफ में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, डीई में। यही इस क्वेश्चन का हाईलाइट है, यही कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो मुझसे पूछिए, अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए वाला बात। नहीं पूछो, नहीं पूछना,
डी के बाद फिर 2 पॉइंट ऐसे ऐसे। आपका डायग्राम सिंप्लीफाई कुछ ऐसा बनेगा, ये सिंप्लीफाई कुछ ऐसा बनेगा। यू कैन सॉल्व, इसके बाद यू कैन सॉल्व, ठीक है ना। भाई ठीक है ना। ये वाला पार्ट समझ में अगर आ गया तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ नहीं बचा है ना। गो ऑन सिंप्लीफाई करते, ये बच गया, बन गया आपका 2r, 2r, r/2, r/2। आंसर इज r/2। प्लीज देखिए और कॉपी कीजिए अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो पूछिए।